Hi everyone, I hope you're doing good. If yes, that's great. Take care of yourself. I love you all so much. And in this video, I will talk about your chapter number one, Foundations of Psychology, which is very, very important. We will talk about chapter number one, Foundations of Psychology. Right? We'll talk about Foundations of Psychology in this video. And this is your batch one for all the psychology students. In this batch, we will talk about students who are appearing in 2027 CVTPG exam, and we will talk about those students. And the whole year, the whole 2026 will be theirs, right? They have a lot of time to prepare, and that is why we will get started with our chapter number one first. And Sunday to Sunday, you have mock tests that you have to attempt. You cannot make any excuses. You have to attempt Sunday to Sunday mock test. That's going to happen very, very soon, right? So I think we should get started. Hold on, let me adjust my camera and my mic. And then we will start. I hope you can hear me properly. And then we will start with our most important lecture. Let me open my book because I'm going to be explaining it from Cicerelli plus Barron, so it's going to be a very detailed video. Let me open my book. Give me a second. First, we will talk about the basics. Shall we start with the basics? Okay, first let's start with the basics. Right, so I have a book, Cicerelli. I think the spelling is correct. Cicerelli, I have a book, and this is the most important book if you want to prepare for CVT PG. And this is really the most important book if you want to prepare for CVT PG, Cicerelli, and you can also add Barron to it. If you have Barron and if you have Cicerelli, these two books are the best books for your preparation. And I have Cicerelli latest edition. I think it's the 6th edition, so you do not have to worry if you have it or not. I have this, and I will be explaining you every important part that is there in this book, and of course in Barron as well. So we will be talking about it. Do not worry if you do not have these books, but if you have these books and if you can borrow it from someone, that is great. Otherwise, I will be only talking about the important parts that are there in your book, and we can cover that as well, because we're starting from 24 March. So we have plenty of time. Plenty of time. Okay, yeah, let's get started. My mic is connected. Now let's talk about psychology. First of all, when you think about this word psychology, what comes to your mind? Do you think that we understand others in psychology? Do you think that it is also helpful to understand ourselves? What do you think about this field? Let me know, because I personally think that psychology is all about understanding yourself and as well as others. That is why I think it is for understanding yourself. It is good for understanding yourself but also others, and that is why I think this is the bestest subject ever. And I always get good marks. I always feel really good when I study and I teach psychology, and as well as I study psychology. So yes, I am back with you all, and please subscribe to my channel in case you haven't. And let's start our chapter number one, Foundations of Psychology. Now, in Foundations of Psychology, first of all, you have to know that psychology is not an English word. Psychology is not an English word. I'll tell you why. Okay, just give me a second. So psychology is not an English word, it is a Greek word. If you break down this word, you will come to a conclusion that it is a Greek word. It is not an English word. It is a Greek word. How? When you break down this word psyche plus ology, you will know that psyche का मतलब हमारा soul होता है and ology का मतलब mind होता है. तो initially जब आपकी साइकोलॉजी आई थी तो साइकोलॉजी वॉज नॉट साइंटिफिक. ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या थी? वो साइंटिफिक नहीं थी. ठीक है, साइंटिफिक नहीं थी जब साइकोलॉजी आई थी सबसे पहले. इट वॉज नॉट साइंटिफिक. इट वॉज डेफिनेटली नॉट साइंटिफिक. इट वॉज अनसाइंटिफिक. ठीक है, जो साइकोलॉजी आई थी वो अनसाइंटिफिक थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, हम सोल और माइंड की स्टडी करते हैं. ना इमेजिन कोई सोल एंड माइंड की स्टडी करे, वो साइंटिफिक कैसे होगा? क्योंकि आप ना सोल को ऑब्जर्व कर सकते हो और ना ही आप माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो, ना ही आप सोल को ऑब्जर्व कर सकते हो, ना ही आप माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो हाउ दिस इज साइंटिफिक? दिस इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल. कोई भी चीज़ अगर साइंटिफिक होगी, कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो साइंटिफिक है, वो एविडेंस पे बेस्ड होती है. अब मैं टिंकू को बोलूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या टिंकू मुझे सुनेगा? टिंकू मुझे नहीं सुनेगा, बिकॉज
बिकॉज उसके पास एविडेंस नहीं है, और मैं जो बोल रही हूँ मेरी बातों में भी एविडेंस नहीं, तो गूगल पे जाके एक रिसर्च को देखेगा जिसमें एविडेंस होगा, बहुत ज़्यादा थ्योरीज और हाइपोथेसिस पे बनी होंगी। इसलिए कोई भी चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या हम सोल को, सोल मतलब आत्मा, माइंड और सोल को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर माइंड, हम माइंड को मेजर नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट मेजर सोल, हम सोल को भी मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर माइंड एंड वी कैन नॉट मेजर सोल, हम माइंड और सोल को मेजर नहीं कर सकते। धीरे धीरे लोगों ने बोला कि ये तो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि कैसे आप किसी की आत्मा, किसी के माइंड को मेजर करोगे? ऑब्जर्वेबल नहीं होता। तो कोई चीज़ ऑब्जर्वेबल होती है, जो मेजरमेंट जिसकी हो सकती है, वही हमारी क्या चीज़ होती है, वो साइंटिफिक होती है। धीरे धीरे लोगों ने बोला कि माइंड को तो हम चलो कर ले, सोल को नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे एक डेफिनेशन आई, जिस डेफिनेशन में बोला गया कि हमारी जो माइंड और बिहेवियर है वो एक करेक्ट डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है करेक्ट डेफिनेशन है, बिकॉज ये जो डेफिनेशन है क्या है? साइंटिफिक डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है क्या है? एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, विच मीन्स हम बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज क्राइंग वी कैन मेजर दैट, इफ़ अ बेबी इज क्राइंग वी कैन मेजर दैट, we can observe that. It is also observable. It is also observable. So if a baby is crying, if someone is doing something, we can measure it first, and then we can observe it, right? And that is why it is scientific. So ये definition expand होके आ गई थी. That is why this definition is one of the bestest definition. That is why initially psychology की क्या है? bestest definition है. और psychology में एक mental processes की भी बात करी जाती है. mental processes क्या होते हैं? आपके जो भी mind में जो भी आपके जो processes होते हैं, आपकी जो mentality है basically, जो भी आपके functions हैं, जो आपके माइंड से रिलेटेड है, जो भी आपके फंक्शन जो है वो आपके माइंड से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। उसे हम मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। ये माइंड से जो भी आपके रिलेशंस होते हैं, जो भी माइंड से चीज़ें कनेक्टेड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक इंसान के मेंटल प्रोसेसेस। उसी को क्या हम बोलते हैं? एक इंसान के मेंटल प्रोसेसेस हम बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो माइंड से कनेक्टेड है, वो आपके क्या हो गए? मेंटल प्रोसेसेस हो गए। तो धीरे धीरे इस पर भी उन्होंने क्या फोकस किया? साइकोलॉजिस्ट ने जो आए थे इनिशियली, जो भी साइकोलॉजिस्ट आए थे साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताने, उन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है? मेंटल प्रोसेसेस को भी इन्वॉल्व करती है, बिहेवियर जो ऑब्जर्व और मेजरेबल करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करती है। इनकी वजह से साइकोलॉजी क्या हो गई? साइंटिफिक हो गई। इतना बहुत ही सिंपल है। सोल और माइंड से स्टार्ट हुई थी और माइंड एंड बिहेवियर से एंड हो गई, फिर मेंटल प्रोसेसेस की बात की गई थी। दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो अभी हम देख लेते हैं कि जो डेफिनेशन न्यू आई थी वो कौन सी डेफिनेशन, जो नई डेफिनेशन थी वो क्या थी। एक बार वो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक बार क्या कर लो, वो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। होल्ड ऑन, मुझे अपनी बुक को रखने दो कहीं स्टेबल जगह पे, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए रियली सॉरी। चलो अब हम देख लेते हैं कैसे हम समझेंगे इसकी एक न्यू डेफिनेशन जो आई थी। हमने अभी समझ लिया माइंड एंड सोल, ये आपको क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर टू यू ऑल? लेट मी जस्ट कैमरा होल्ड ऑन। Am I visible to you? Am I audible? Let me know, okay? Okay, okay. Let's start. लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो डेफिनेशन इनिशियली आई थी ना, आपकी सिसरेली बुक में मेंशन है, तो ये ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि साइकोलॉजी, क्या लिखा है उस पर कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी है, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ mental processes. ये definition you have to note down because it is a very important definition. It is a very very important definition. अब इनिशियली ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनिशियली जब साइकोलॉजी आई थी ना, तो उस टाइम पे ग्रीक फिलोसफर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन से होते हैं? तो ग्रीक फिलोसफर्स वो होते हैं जो ग्रीस के थे, जो ग्रीस के थे। ठीक है, वो ग्रीक फिलोसफर्स थे। और साइकोलॉजी ना इनिशियली जो आई थी वो फिलोसफी से आई थी, फिलोसफी से आई थी, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स थे। फिलोसफी से आई थी। आई एम रियली सॉरी अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टीचिंग राइट नाउ। एंड किससे आई थी? आपकी फिजियोलॉजी से आई थी। तो फिलोसफी से आई थी और फिजियोलॉजी से आई थी। चेक द स्पेलिंग्स फोक्स। ठीक है, कहाँ से आई थी? आपकी फिलोसफी से आई थी और आपकी कहाँ से आई थी? फिजियोलॉजी से आई थी। ठीक है,
दो चीज़ों से आई थी। अब जो फिलोसोफर्स थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, जैसे वैन पावलोव हो गया, अगर आपने बैचलर्स में लिया है साइकोलॉजी, क्योंकि अब तो नॉन साइकोलॉजी वाले पीजी कर ही नहीं सकते, ऐसा कि नया रूल आया, गाइडलाइन आई है, तो ऑफकोर्स मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सारे जो हैं वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, बैचलर्स में उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मास्टर्स में अभी वो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और बैचलर्स में पढ़ी, और हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी, 12th 11 में भी पढ़ी होगी, बोर्ड्स भी दिए होंगे, नहीं दी तो आपने बैचलर में तो पक्का पढ़ी होगी। तो आपने पढ़ा होगा इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो वो कौन थे? वो आपके क्या थे? आपके थ्योरिस्ट थे, बट वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो आपके फिजियोलॉजिस्ट थे, सॉरी, वो आपके साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो आपके क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया, इसलिए उनको लोग बोल देते हैं जिनको साइकोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता, हमें पता है, हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि वो क्या थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। वो क्या करते थे? वो फिजियोलॉजी चेक करते थे डॉग्स की, ऐसा कुछ था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग फील्ड्स ने दिए हैं। जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स ने आपको साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, और फिजियोलॉजी में भी फिजियोलॉजिस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है साइकोलॉजी की कंट्रीब्यूशन में। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, एंड आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का, आपने एरिस्टोटल, प्लेटो, गैलन का भी नाम सुना होगा, आपने हिपोक्रेट्स का नाम भी सुना होगा, आपने हिपोक्रेट्स का नाम भी सुना होगा। ये जो सारे थे ये मेन थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये जो थे हमारे क्या थे? मेन थे। एक रेने डिकार्टिस भी है, ठीक है, डिक्रेट्स जो भी इनका सरनेम है वैसा। तो अब ये क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रीब्यूशन के लिए साइकोलॉजी में। These Greek philosophers are inevitable and you have to study about them. You have to study about them and these are very, very, very important. Right now, we will discuss it and after that, this is your topic number, I think second, हम ये डिस्कस करेंगे, हमें अपनी साइकोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की, साइकोलॉजी कहाँ से आई थी, पहले कौन कौन सी डेफिनेशंस थी, माइंड एंड सोल था, और आपका क्या था? माइंड एंड सोल था, और आपका माइंड एंड बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस हो गया। उसके बाद आपकी जो थर्ड चीज़ है वो आपको ग्रीक फिलोसोफर्स पढ़नी है, जो अभी वी विल डिस्कस। फोर्थ चीज़ दैट वी हैव टू डिस्कस इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, schools of psychology, and this is a symbol of psychology. This is something that we will discuss after Greek philosophers. We will discuss कि हमारी जो psychology थी उसमें बहुत ज़्यादा schools थे, बहुत ज़्यादा schools थे, वो हम बाद में discuss करेंगे कि schools क्या होता है। Okay, now let's proceed with और Greek philosophers. अब इन सब की ना आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी गूगल पे, तो इन सब की आपको पिक्चर्स देख लेनी है ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये ग्रीक फिलोसफर्स थे और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। शैल वी स्टार्ट विद और फर्स्ट वन विच इज़ सोक्रेट्स। ठीक है, हमारे कौन से थे? सोक्रेट्स थे। ठीक है, लेट्स डिस्कस। मैं अपने नोट्स इधर रख देती हूँ एंड वी विल डिस्कस इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सोक्रेट्स, तो सबसे पहले हमारे क्या थे? सोक्रेट्स थे। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनका नाम मैंने नहीं लिखा ऊपर, बट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोक्रेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन था कि इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने दिया। नाउ इंट्रोस्पेक्शन आप स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ोगे, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एंड आई एम अज्यूमिंग की बैचलर्स करी होगी, तो बैचलर्स में भी आपने पढ़ा होगा। पीजी में और ज़्यादा थ्योरीज आएंगी, पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आएंगी, बट ये चैप्टर तो बहुत ईजी है। इस चैप्टर को आज हम मे भी ख़त्म कर दें। मे भी आपको लगेगा मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रही हूँ, मैं थोड़ा रश कर रही हूँ चीज़ों को, मैं बहुत ही क्विक हूँ और फास्ट हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में। तो मे बी आई एम डूइंग थोड़ा सा आई एम रशिंग अ लिटिल बिट, मे बी आई एम, यू माइट थिंक दैट आई एम इन हेस्ट, कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भगा रही हूँ, बट मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना ही आपके CUET PG के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए आपको क्विकली चीज़ें समझा रही हूँ, बिकॉज और भी चैप्टर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका दिसंबर में सारा सिलेबस खत्म हो जाए। फिर हम पूरा जनवरी, पूरा फरवरी मॉक टेस्ट करेंगे, और मार्च के जितने भी दिन होंगे, अगर आपके 16 को एग्ज़ाम है, जैसे इस साल आपका 16 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट साल में भी आपका हो जाएगा एग्ज़ाम 15 को, मे बी 16 को, मे बी 17 को, तो आपके पास कुछ दिन मार्च के भी बचेंगे, तो उधर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उस टाइम पे हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए हम एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स रखेंगे, 2 मंथ्स तो पक्का रखेंगे फॉर सॉल्विंग मॉक टेस्ट, एंड देन ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक आपको अभी भी समझ नहीं आया है। इसलिए वो 2 मंथ्स तो लेगा। वो आपके कितने लेगा? 2 मंथ्स तो पक्का लेगा, एंड दैट इज़ वाई I am not in rush, but I'm trying my best to explain everything that is important. Irrelevant information should not
be in this video because you can study it after your exam or maybe in your free time, extra information. But here you do not need to study extra informations. Whatever I'm teaching you is enough for CVT PG. Let's get started with Socrates. Now Socrates जो हमारे थे उन्होंने क्या बात की, इंट्रोस्पेक्शन की बात की. All you have to do is make notes with me and listen to me. That's all. And yes, I'm guaranteeing you by the end of this year, when you will have your exam in 2027, you will be able to score 270 plus. I am so happy to tell you this, that you will score it, and you have to believe in yourself. You have to visualize good things about yourself, and all you have to do is just put efforts. You will get the results if you put efforts. Now हमारा क्या है, इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था जो आपके ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने दिया. अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, आपका इंट्रोस्पेक्शन होता है अपनी जो भी थॉट्स हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है. अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पेन दिखा रही हूँ ऑन ए स्क्रीन, आई होप यू कैन सी दिस पेन. नो व्हेन यू कैन सी दिस पेन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट कैन यू ऑब्जर्व अबाउट दिस पेन, व्हाट कैन यू सी अबाउट दिस पेन, व्हाट थिंग्स कैन यू नोटिस अबाउट दिस पेन. एंड व्हेन आई विल से दिस टू यू, and if I show you this pen and I ask you to describe this pen, so you will do it. And this is introspection. It means अपनी conscious awareness में, when you are fully conscious, आप किसी भी चीज़ को, अपने thoughts को describe करे हो without any biasness. अपने thoughts को आप अच्छे से describe करे without any biasness. यही आपका क्या होता है, introspection होता है. थोड़ा बहुत इसको हम डिस्कस करेंगे आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म में भी. ठीक है, तो इन्होंने क्या फोकस किया, इन्होंने इंटरनल एस्पेक्ट पे फोकस किया. इंटरनल एस्पेक्ट पे फोकस किया, इंटरनल मेंटल लाइफ पे इन्होंने फोकस किया. इन्होंने ये बोला कि आपकी जो इंटरनल मेंटल लाइफ है वो मैटर करते हैं, क्योंकि इससे पहले, सोक्रेट से पहले लोग ये बिलीव करते थे कि आप एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस करो. बट सोक्रेट जब आए, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पे फोकस किया. उन्होंने बोला कि अपने खुद के माइंड को ऑब्जर्व करो, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करो. उससे पहले किसी ने नहीं चीज़ बोली थी, किसी ने नहीं बोली थी. सिर्फ सोक्रेट्स आए थे, उन्होंने बोला कि फोकस ऑन योर इंटरनल मेंटल लाइफ, इंटरनल मेंटल हेल्थ, राइट. इंटरनल एस्पेक्ट पे बात करो, इंटरनल एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करो. एक्सटर्नली इन्होंने बात नहीं की. इन्होंने एक्सटर्नल को रिजेक्ट कर दिया. एक्सटर्नल को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, और किसकी बात की, इंटरनल की बात करनी उन्होंने क्या की, शुरू की. इतना ईजी है. ठीक है, उसके बाद इनका जो मेथड था, सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग सोक्रेटिक मेथड. आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से आपको ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो इतना नहीं आपको डिटेल में दिया जाएगा, बिकॉज टोटल क्वेश्चन ही इतने कम है, 75 क्वेश्चंस है. फिर भी यू हैव टू स्टडी कि सोक्रेटिक मेथड क्या था. सोक्रेटिक मेथड जो था आपका, सोक्रेटिक मेथड जो था आपका, उसमें क्या था, सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग. मतलब वो क्या करते थे, पहले एक ऑब्जेक्ट दिखाते थे, देन ही आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स. व्हाट कैन यू ऑब्जर्व, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट कैन यू नोटिस अबाउट दिस ऑब्जेक्ट दैट आई एम शोइंग यू. एंड देन यू हैव टू टेल मी, you have to tell me your internal thoughts, your internal thought processes, your internal mental processes. And then he used to टेल हिज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब. तो वो क्या बोलते थे, वो सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग करते थे, वो अपने स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को चैलेंज करते थे, इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करते थे. और इसी सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग को हम क्या बोलते हैं, सोक्रेटिक मेथड. दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू नो. ओके, नेक्स्ट है इनका जो कोर आइडिया था, मतलब मेन जो आइडिया था इनका, वो ये था, ट्रूथ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस, वी जस्ट अनकवर इट. मतलब जो भी आप इंट्रोस्पेक्शन से बाहर लेके आते हो, आपका सच होता है, बट वो अंदर रहता है. अपने सच को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करना पड़ता है. इज़ दैट ईजी? Is that easy to understand? I'm assuming that this is very, very easy to understand. I'm assuming that you will be able to do it and you are not facing any problem. You know, introspection का method दिया, वो आपको याद रखना है. That is something that you have to remember. Okay. और इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने आपकी बात की कॉन्शियस अवेयरनेस पे, कि आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्शियस अवेयरनेस होनी चाहिए. मतलब आप पूरे अवेयरनेस में रहो. यू हैव टू बी इन अवेयरनेस. यू कैन नॉट be unconscious. You cannot just be unconscious. You cannot be always zoned out. You have to be in awareness. You have to be in your full awareness. You have to be fully conscious all the time. That's what he talked about. You have to be fully conscious all the time, and that is something that he focused on, he talked about, right? And now second thing we have to talk about is second Greek philosopher that we have to talk about is Plato. Now Plato was also very, very important. Plato was very, very important. Okay, or Plato was very, very important. Okay, let me put him here, hold on. So Plato is very, very important. Okay, Plato is very, very important. 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 Pla
आपका एरिस्टोटल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है. जो भी आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स एनफ, यू डू नॉट हैव टू सर्च समवेयर एल्स. वट एवर इज एक्सप्लेन्ड टू यू इट इज़ इंपॉर्टेंट. अब जो प्लेटो थे उन्होंने क्या बोला, माइंड जो है एंड जो बॉडी है, सो ही टॉक्ड अबाउट माइंड एंड बॉडी. ही टॉक्ड अबाउट माइंड एंड बॉडी. ही बेसिकली सेड जो माइंड एंड बॉडी आपकी वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, जो आपकी माइंड एंड बॉडी है वो डिफरेंट है. इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया, किसका दिया, नेटिविज्म का. इन्होंने बोला जो भी चीज़ें हम सीखते हैं अपनी लाइफ में वो इन्नेट होती हैं, मतलब वो इनबॉर्न होती है. कोई भी स्किल यू हैव, कोई भी स्किल यू हैव, कोई भी नॉलेज टैलेंट यू हैव, वो आपकी क्या होंगी, इन्नेट होंगी. तो इनको हमने क्या बोला, नेटिविज्म. ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे दो वर्ल्ड होते हैं. एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है, इन्होंने क्या बोला, एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है और हमारा एक क्या होता है, हमारा एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ होता है. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू, होल्ड ऑन. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड होता है, हमारा एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ होता है, विच मीन्स जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है, अब देखो आप फिजिकल वर्ल्ड में ही रहते हो. ठीक है, आप देखते हो, आप किसी पार्टनर से मिलते हो अपनी लाइफ में, सारी जो चीज़ें वो क्या है, बिल्कुल इम्परफेक्शन से मिली हुई हैं. मतलब एवरी थिंग इज़ वेरी इम्परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट, राइट. सो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इम्परफेक्ट है. जो आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, जो आप फैंटेसीज जो आपकी होती है वो परफेक्ट है. अब आपको पता है कि आपको एक आइडियल पार्टनर चाहिए और उस आइडियल पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ठीक है, जैसे आपको टिंकू को डेट करना है, अब टिंकू के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपको मिल रही हैं, बट आपको एक दो क्वालिटीज़ मैच नहीं कर रही हैं. तो टिंकू तो परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि टिंकू अच्छा है बट वो ना बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल है, या वो बहुत ज़्यादा नॉन चलांट है. लड़कियों को नॉन चलांट नहीं पसंद आते. ठीक है, और तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको एक बंदा चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो. अब टिंकू ना वैसा है नहीं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि टिंकू परफेक्ट है? टिंकू परफेक्ट नहीं है. तो ये तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड है. इधर तुम लोगों से मिलते हो, लोगों की इम्परफेक्शन को ढूंढते हो, लोगों में इम्परफेक्शन होती है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग यू. यू हैव इम्परफेक्शंस एंड आई ऑल्सो हैव imperfections. You have imperfections and I also have imperfections, because we live in a world जहाँ पे सबके अंदर कुछ ना कुछ pros and cons होंगे. But it doesn't mean that the person is wrong. It means that we are humans and we are meant to be a little imperfect. And even if we are very imperfect, we need someone to accept us. Just like I am imperfect and I need a partner who can accept me for my imperfections, right? Because my imperfections are my perfections. But मेरे को जो फैंटेसी है, मैंने जो एक मूवी देखी उसमें वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट था. वो मूवी तो रियलिटी नहीं है, तो आपके आइडियाज़ हैं, आपकी फैंटेसी है. तो आपकी फैंटेसी क्या होती है, परफेक्ट होती है. इन दो चीज़ों पे किसने फोकस किया, प्लेटो ने इन दो चीज़ों पे फोकस किया. एक आपका फिजिकल वर्ल्ड जो इम्परफेक्ट होता है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो आपका बिल्कुल परफेक्ट, आपकी फैंटेसीज. ठीक है, आपके आइडियाज़. इन्होंने ये बोला नॉलेज इननेट है, जो भी स्किल्स हैं आपके, जो भी टैलेंट है वो आपके इनबॉर्न है, वो आपके क्या है, इनबॉर्न है. ठीक है, वो आपके क्या है, इनबॉर्न है. इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की डुअलिज्म की. अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था डुअलिज्म, मैंने उसका जो टर्म था वो नहीं दिया, बट मैंने वो डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या बोला, आपके प्लेटो ने, कि जो माइंड है और जो बॉडी है वो सेपरेट है. वो जो है आपका सेपरेट है. माइंड और बॉडी आपकी दोनों अलग हैं. माइंड इज़ डिफरेंट. अगर कुछ भी माइंड में उस पर बॉडी पे कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो माइंड पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा. माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट, एंड फॉर दैट देयर इज़ अ टर्म दैट ही गेव. There is a term for that. When mind and body are separate, there is a term for that, which is dualism. Dualism is a term for that, right? He gave this term dualism. Okay. Okay. अब इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बिलीव किया, इन्होंने ये बिलीव किया कि जो हमारी सोल है, ठीक है, हम प्लाटो की बात करें, हम किसी नेक्स्ट ग्रीक फिलोसफी नहीं आए, हम प्लाटो की बात करें. तो व्हाट डिड प्लाटो से, प्लाटो से कि आपकी जो सोल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. योर सोल इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. ही गेव लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ वाई इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपकी जो सोल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल, स्पिरिटेड एंड. तो उन्होंने बोला रैशनल, मतलब रैशनल का इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश मीनिंग देखो, सिनोनिम देखो, तो द मीनिंग ऑफ रैशनल इज़ लॉजिकल, लॉजिक, थिंकिंग. तो आपका एक सोल का पार्ट है विच इज़ वेरी लॉजिकल, विच हैज़ लॉजिकल थिंकिंग इन इट, विच इज़ रैशनल, विच इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो. सो ही गेव दिस part of soul the meaning of logic, thinking and practical, that this part of your soul is logical and practical. Now the next one is
Spirited. Now spirit का मतलब emotions. Now this part of your soul has emotions, feelings, right? And appetitive मतलब when you have lust, when you have lust, when you have an appetite, which means that you have desires. As a human being, as humans, we have different desires. It could be a desire for food, for money, for sex, lust, and these are the desires that every human being has, okay, including you and including me, and there's nothing wrong with that. But again, he it was given by Plato. I hope this is easy for you to understand. Is that easy for you to understand everything? You can take a screenshot if you want. If you want to write it down with me, you can do that. Okay. 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 और नेटिविज्म दिया था. नेटिविज्म मतलब हमारा क्या होता है, नेचर वर्सेस नर्चर. तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये भी दिया नेचर वर्सेस नर्चर. अच्छा, ये डिबेट ना आपकी साइकोलॉजी में काफ़ी टाइम से चली आ रही है, नेचर वर्सेस नर्चर. अगर आप नहीं भी हो साइकोलॉजी के स्टूडेंट, यू विल स्टिल नो अबाउट इट, यू विल स्टिल बी अवेयर अबाउट दिस टर्म नेचर वर्सेस नर्चर, नेटिविज्म. ठीक है. इन्होंने किसकी साइड पे फोकस किया, इन्होंने आपकी नेचर वाली साइड पे फोकस किया. ठीक है. नेटिविज्म स्पेलिंग, आई एम जस्ट चेकिंग माई स्पेलिंग्स, क्योंकि मेरी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. तो ठीक है, इन्होंने किस पे फोकस किया, नेचर वर्सेस नर्चर पे फोकस किया. डिबेट बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, एंड दिस यू वुड नो अबाउट इट इवन इफ यू नॉट अ साइक स्टूडेंट, विच मीन्स नेचर इज बायोलॉजिकल एंड नर्चर इज इन्वायरमेंट. ये समझ आ गया. नेचर इन्वायरमेंट होते हैं. आप कुछ भी चीज़ें सीखते हो अपनी फैमिली से, वो आपकी क्या होती है, नेचर नर्चर होती है. ठीक है. वो आपकी नर्चर होती है, मतलब आप इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो. और जो आप बायोलॉजी है, जो आपकी हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिडिटी है, आपके जीन्स है, ठीक है, वो आपके क्या हो गए, वो आपके किसके पार्ट हो गए, नेचर के. नर्चर के क्या हो गए, इन्वायरमेंट. आपके पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, आपके पीयर्स कैसे हैं, आपका सोशल लाइफ कैसी है, कैसे आप नर्चर हो रहे हो. फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होती है. फैमिली आपको जो भी चीज़ें सिखाती है, इफ़ दे आर टीचिंग यू वायलेंस, देन यू विल बी वायलेंट. यू माइट डेवलप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इफ योर पेरेंट्स आर, यू नो, एनी थिंग कैन हैपन विद नर्चर, बट नेचर यू कांट कंट्रोल, नर्चर यू कैन कंट्रोल. ठीक है. दिस इज़ अ डिबेट दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन इन साइकोलॉजी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नेटिविज्म इसको बोलते हैं. ठीक है. नेटिविज्म पे आपके प्लेटो ने फोकस किया, मतलब इन्होंने क्या बोला, इनबॉर्न. अब आप ऊपर जाओ, आप ऊपर जाओ, तो यू वुड नोटिस कि हमने ये डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट दिस. इधर हमने बोला था इन्नेट. इन्नेट का मतलब नर्चर, सॉरी नेचर. इन्नेट का मतलब नेचर, मतलब नेचर, बायोलॉजी आपकी कैसे, बायोलॉजिकल, आप जैसे बॉर्न हुए हो, इन बॉर्न, ठीक है, वो आपका नेचर हो गया. नर्चर आपको मैंने समझा दिया. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ शुड वी स्क्रोल इट डाउन अ लिटिल. ओके. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, विच इज़ वेरी वेरी important to know, that is why I'll explain you. मैंने सब कुछ ऊपर mention किया हुआ है. You can go and watch this video and make notes. ठीक है. चलो. Okay, now we will discuss Aristotle. Now we have Aristotle. Now, Aristotle was very, very important as well, and he talked about empiricism. He was the first person, first Greek philosopher who talked about empiricism, which means that you should have an approach which is बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एविडेंस. एम्फेरिसिज्म मतलब कोई भी चीज़ साइंटिफिक है. मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मतलब किसी चीज़ में कोई एविडेंस है. बिकॉज इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग यू विल नॉट बिलीव इट, बट इट हैज़ सम एविडेंस बिहाइंड इट, यू विल बिलीव इट, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स एंड वी नीड सम काइंड ऑफ एविडेंस टू बिलीव समथिंग. वी नीड सम काइंड ऑफ एविडेंस टू बिलीव समथिंग, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने बात की एम्फेरिसिज्म की. ठीक है. दैट्स वाई ही टॉक्ट अबाउट एम्फेरिसिज्म. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. आई एम telling you
If you make notes right now, you will not regret. This is something that you have to know. Okay, this is something that is very very important. This is something that you have to note down. किस फिलोसोफर ने किसकी बात की थी, ड्यूअलिज्म किसने बोला था, एम्पिरिसिज्म किसने बोला था, एम्पिरिसिज्म का मीनिंग क्या होता है, कौन सा ग्रीक फिलोसोफर था जिसने आपकी बोला था कि इनेट होती है, नेटिविज्म का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था, इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म। इन्होंने डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, विच मीन्स इन्होंने बोला कि माइंड एंड बॉडी जो है सेपरेट नहीं होते। इन्होंने बोला कि माइंड एंड बॉडी जो है, आपकी जो माइंड एंड बॉडी है वो क्या है, एक साथ है। आपकी माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं। वट एवर हैपन्स इन योर बॉडी पुट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, एंड वट एवर हैपन्स इन योर माइंड पुट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। विच मीन्स इन्होंने मोनिज्म की बात की, जो डुअलिज्म से थोड़ा डिफरेंट है। मोनिज्म का मतलब क्या होता है, मोनिज्म का मतलब होता है जो लोग ये बिलीव करते हैं कि माइंड एंड बॉडी जो है वो अलग नहीं है। माइंड एंड बॉडी अलग नहीं है, माइंड एंड बॉडी सेम ही है। माइंड भी सेम है, बॉडी भी सेम है। जो भी माइंड में होगा वो बॉडी में होगा। ठीक है, आर वन, माइंड एंड बॉडी। इन्होंने इसकी बात की। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इन्होंने ना एक टबूला रासा की भी बात की। ठीक है, टबूला रासा की इन्होंने बात नहीं की थी, आई थिंक हिपोक्रेट्स। इन्होंने टबूला रासा एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की बात की। टबूला रासा आपकी किससे था, हिपोक्रेट्स ने दिया था। अभी नहीं समझते हम, अभी नहीं समझते हम, अभी इसको हम नहीं समझते। अभी आपको बस इतना नोटिस करना है, इतना पढ़ना है सॉरी, कि जो आपका कॉन्सेप्ट है मोनिज्म, ये इंपॉर्टेंट था, इन्होंने दिया। टबुला रासा भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, उन्होंने बस इतना बोला कि आपकी इनेट नहीं होती, आपकी इनेट। इन्होंने प्लाटो को बिल्कुल भी, ही हेटेड ही हेटेड प्लाटो सो मच, आई एम सॉरी, ही हेटेड प्लाटो सो मच दैट ही वाज लाइक नो नो, आई डू नॉट बिलीव कि इनेट होती है। उन्होंने बोला कि हमें एक्सपीरियंस जो है उसी पे ही हमें सब कुछ करना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस होता है। बचपन से कुछ भी सीख के नहीं आते हैं। थ्रू आउट और लाइफ, थ्रू आउट और लाइफ हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी जो भी टैलेंट है वो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद चीज़ें हमारी डेवलप होती है। टैलेंट स्किल, जो भी स्किल्स होते हैं, जो भी टैलेंट्स होते हैं हमारे, कैसे डेवलप होते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद चीज़ों को। तो इन्होंने बेसिकली इतना बोला, इनेट कुछ भी नहीं होता। प्लाटो को इन्होंने सारे जो प्लाटो के आइडियाज़ उनको इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ प्लाटो कम्प्लीटली ही रिजेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ प्लाटो। ठीक है, एंड ही सेट ऑब्जर्वेशन। अब हमने शुरू में बात की थी कि इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने एम्पिरिसिज्म की बात की। मतलब कोई भी चीज़ होगी वो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होगी। कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होगी। कुछ भी चीज़ होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, साइंटिफिक होगी, मतलब उसके पीछे कोई एविडेंस होगा। तो उन्होंने क्या की, इन्होंने इसकी बात की कि ऑब्जर्वेशन। अब कोई भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे माइंडेड बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए नॉन साइंटिफिक से क्या होगी, माइंड एंड सोल से माइंडेड बिहेवियर होगी। तो मतलब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, साइंटिफिक होगी। तो उन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन, इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे एम्फेसाइज किया। ही एम्फेसाइज ऑन measuring things and classification. He also focused on classification, right? It is very very easy to understand. Is that easy to understand? Now two important things you have to remember about Aristotle. First, he talked about empiricism. Second thing you have to understand about Aristotle is that he talked about behaviorism. He talked about behaviorism means that we can observe behavior, and when we can observe something, it is scientific, and that is why he focused on behaviorism. And he focused on scientific psychology also. This is a symbol of psychology, right? So he focused on scientific psychology also, and he was the first person to discuss that. He was the first person to reject Plato completely, right? And there's one more person that I want to talk about. There's one more person that I have to talk about, right? Let's talk about him. Let's talk about him, right? Now, Hippocrates was very very important, and he was the first person who talked about hold on. Yeah, so we will talk about Hippocrates a little bit.
हिपोक्रेट्स की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने टबुला रासा बोला था ना, टबुला रासा का मतलब क्या होता है? टबुला रासा का मतलब होता है एक ब्लैंक स्लेट। तो व्हेन ह्यूमन्स आर बॉर्न, तो उन्होंने बोला, किसने बोला ये? आपके जॉन लोकी ने बोला। मैंने गलती से हिपोक्रेट्स बोल दिया। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आती हूँ, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, आई हैव टू एक्सप्लेन अगैन एंड अगैन। इसलिए आई गॉट कंफ्यूज कि जो टबुला रासा का कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया? उसको जॉन लोकी ने दिया। ठीक है, जॉन लोकी ने इसको दिया, ये कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हम क्या होते हैं, हम एक ब्लैंक स्लेट। और ये जो था, एरिस्टोटल भी काइंड ऑफ इंस्पायर्ड थे इस आइडिया से कि एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके इनबॉर्न नहीं होते हैं। उन्होंने प्लेटो को बिल्कुल इग्नोर किया। प्लेटो ने क्या बोला था? इनेट होते हैं। नेटिविज्म पर उन्होंने एम्पिरिसिज्म की बात की, मतलब जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, साइंटिफिक। अब टबुला रासा आपकी जॉन लोकी ने दी थी। इसका मतलब व्हेन यू आर बॉर्न, इसका मतलब क्या होता है टबुला रासा? ब्लैंक स्लेट। यू बॉर्न विद अ ब्लैंक स्लेट। आप एक ब्लैंक स्लेट के साथ बॉर्न होते हो। ब्लैंक स्लेट मतलब एक ऐसी नोटबुक जिसमें कुछ लिखा नहीं होता। एंड व्हेन यू आर बॉर्न यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, एंड इवेंचुअली द थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस आर रिटन डाउन in the end of your life, right? That is what he said, John Locke, that you have to remember. ठीक है, it was John Locke, I forgot, it was not Hippocrates. Hippocrates ने क्या किया था? Hippocrates जो थे हमारे, Hippocrates जो थे हमारे, चलो, ब्लैंक स्लेट ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, और आपका टेबुला रासा जॉन लोके ने दिया था। इजी टू अंडरस्टैंड? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं हिपोक्रेट्स की। अब हिपोक्रेट्स ने क्या किया? हिपोक्रेट्स का क्या रोल था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हिपोक्रेट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम इनको मिस नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती तो इग्नोर कर सकती थी, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBT PG साइकोलॉजी। तो उन्होंने क्या बोला? जो ब्रेन है हमारा, वो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन है हमारा, वो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है। इंपॉर्टेंट सेंटर है मतलब जो है हमारी बॉडी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है। अगर ब्रेन डैमेज हो गया, इन्होंने बोला, तो आपकी पूरी बॉडी में जो भी बिहेवियर आप करते हो, जो भी बिहेवियर आपका है, लाइक राइट आई एम टीचिंग यू, आई एम इन अ very stable mind, I have a stable mind right now, I'm teaching you, and I have my brain functioning properly like a normal human being. But if it is damaged for any XYZ reason, if it's damaged, then I can have issues in my behavior, right? I can have issues in my behavior. And he also said brain is important for controlling thought. इन्होंने बोला ब्रेन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, बिकॉज इट कंट्रोल्स थॉट, इट कंट्रोल्स इमोशंस एंड बिहेवियर। easy to understand. And then he rejected, तो उस टाइम पे ना क्या होता था before Hippocrates? So Hippocrates was from 460, you do not have to remember this, just for your information. He was from 460 to 370 BC. Now before this BC, before this age period when Hippocrates was there, before this time period, there were people who believed that अगर किसी को कोई भी mental illness है, ठीक है, you have to remember this, it's quite interesting also that people were so weird, it is kind of hilarious also that people were so inhuman that वो क्या करते थे? अगर कोई mental problem होती थी, किसी को भी कोई अगर mental problem होती थी, including you and me, and हम हिपोक्रेट्स से पहले, तो if we have a mental problem, it could be BPD, it could be schizophrenia, जो hallucinations and delusions जो भी होते हैं, we have. And he basically said कि अगर आपको ये है तो आपकी बॉडी में demons हैं, and you have some paranormal things going on, you have some paranormal things going on, right? He said you have some paranormal things going on. ओके, एंड इससे पहले, हिपोक्रेट से पहले ये सब बिलीव किया जाता था। एंड समटाइम्स पीपल यूज टू डू, वट दे यूज टू डू इज दैट वो उनको एक प्रीस्ट के पास लेके जाते थे, मे बी इन चर्च, मे बी इन देयर holy places, they used to take that patient and they used to make a hole in their skull, और वो ये बिलीव करते थे कि उनके अगर स्कल में कोई होल है तो उस होल से वो डीमंस निकल जाएंगे। दैट इज़ व्हाट दे यूज टू बिलीव। इट साउंड्स सिली राइट नाउ बिकॉज वी आर इन 2026 एंड ऑलमोस्ट
uh, we are too advanced, we have AI and we have so many technology and everything, so we do not believe this. But that time people never had this kind of technology, this kind of information, so they used to think कि maybe if we make a hole in their skull we will be able to take out the demons. But now when Hippocrates said no, it is not because of your demons, it is not because of something paranormal, it is all because of your mind, it is all because of your brain. If your brain is fixed, everything is fixed, and that is what he focused on. Now there were four humors that he gave, ठीक है. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जो आपके फोर ह्यूमर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल थ्योरी बोलते हैं, ह्यूमरल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है. ह्यूमरल थ्योरी जो होती है आपकी, जो ह्यूमरल थ्योरी है आपकी, ये आपकी हिप्पोक्रेट्स नहीं दी थी, ठीक है. आपकी ह्यूमरल थ्योरी जो है वो हिप्पोक्रेट्स नहीं दी थी, ठीक है. ह्यूमरल थ्योरी आपकी हिप्पोक्रेट्स नहीं दी थी. और इसमें इन्होंने फोर फ्लूइड्स की बात की थी, ठीक है. इन्होंने फोर फ्लूइड्स की बात की थी, दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर पर्सनैलिटी. दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है. इन्होंने फोर फ्लूइड्स की बात की थी, उसमें आपको येलो बाइल, ब्लड, ब्लैक बाइल, फ्लीगम था. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. इन्होंने बॉडी, और ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे, क्योंकि उससे पहले डीमंस की बात करते थे तो सब लोग ये बिलीव करते थे डीमंस की वजह से यू हैव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड यू आर नॉट नॉर्मल एंड वी हैव टू मेक अ होल इन योर स्कल. एंड कोई भी जो एक्टिविटी है, जो भी आप कर रहे हो, मे बी यू नॉट फीलिंग गुड, मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ मेंटल इशू, वो आपको पैरानॉर्मल की वजह से. हिप्पोक्रेट से पहले व्हेन हिप्पोक्रेट केम, he said it is all because of your body and the behavior that happens, it is all because of your body brain connection. Okay. And he is also known as father of medicine, because इनसे पहले लोग demons में करते थे विश्वास. इनके बाद लोगों ने मेडिसिन पे ट्रस्ट करना शुरू किया, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना शुरू किया, एंड ही वाज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो. Rejected supernatural explanations of mental illness. Okay. Easy to understand? This is something that you have to understand right now, and this is it in this video. We are only going to talk about this much, and in the next video we'll talk about schools of psychology. We will talk about schools of psychology. First I'll explain you the meaning of schools of psychology, ठीक है. schools of psychology का मतलब होता है कि अगर आपका कोई आपके जैसा इंसान है who believes कि exercise करना harmful है, even though it is not. I should not take this example because it will send a bad message, but anyways let's take another example कि smoking is bad and we should do something about it. So आप जैसे कितने सारे लोग आए, सबका एक ही स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है. सबका एक ही जो थॉट प्रोसेस था, सबका एक थॉट प्रोसेस जो लेके आए, सब लोग अपना ही एक आइडिया लेके आए, और उस आइडिया को उन्होंने फॉर्म किया, उस आइडिया को फॉर्म किया, कोई भी सेंट्रल आइडिया, ठीक है. कोई भी सेंट्रल आइडिया को उन्होंने फॉर्म किया, और उसकी वजह से आपका स्कूल ऑफ थॉट बन गया. तो सब जो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं वो एक ही आइडिया को लेके आ रहे हैं, तो एक स्कूल बन जाएगा. जैसे स्कूल में यू हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू नो दे आर स्टडिंग, राइट. maybe in a class you are studying the same subject, so maybe आपका क्या है, वो एक school of thought है उन students का, कि वो ये सोचते हैं कि smoking is bad for your health and you should stop it. तो वो क्या करते हैं, कोई भी जो आपका कोई भी और भी school of thought हो सकता है. कुछ लोग ये believe करते हैं consciousness जो है वो exist नहीं करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो I don't want to make this complicated. I hope you understood कि कोई central idea, जो बहुत सारे लोग एक central idea को लेके आ रहे हैं, that is schools of thought. तो कोई भी हो सकता है वो. in psychology हमने बात करनी है सबसे पहले structuralism की. First we will talk about from the next video onwards, next class onwards. I think I'll make it at night or maybe right now because the video is getting too long, so maybe after some time. But आपका क्या होता है structuralism. We will talk about structuralism. Okay. I do not want to make this complicated, इसलिए I'll repeat only once, क्योंकि मेरी आदत है बहुत बार repeat करने की. I think students don't understand me sometimes, but I will not. It gets annoying. I completely agree. So yes, I hope you understood. तो हाँ, हम next class से बात करेंगे structuralism के बारे में. स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, ठीक है. फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म ये था क्या, इससे पहले हमने एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी वी विल डिस्कस, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज एवरीवन नोज दिस, बट आई एम अज्यूमिंग कि यू आर न्यू टू साइकोलॉजी, व्हाटएवर रीजन की वजह से यू डू नॉट नो हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. आई वांट यू टू नो हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, बट आई वांट यू टू यूज योर माइंड अ लिटिल बिट. व्हाट नहीं होता, हु होता है. होल्ड ऑन. Who is the father of psychology? I want you to tell me in the comment section. This is your homework. According to you, what do you think? I don't want you to search on Google. No,
This is not something that I want you to do. I want you to use your brain. Who can be the father of psychology if I talk about structuralism? What comes to your mind? Who is the father of psychology? I'll give you a hint also. Hold on. Who is the father of psychology? And you have to answer me in the comment section. I'll give you a hint. इन्होंने बहुत ज़्यादा experiments किए थे. ये experiment करना चाहते थे. इसके बाद तो सब कुछ clear हो गया होगा. I actually gave you the answer also. Experiments, I gave you the answer also. बट ठीक है, इट्स ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल एंड आई होप ये सेशन इंटरेस्टिंग था। ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, इससे ज़्यादा आपको अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यू कैन मेक नोट्स, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक नोट्स। इफ़ यू डोंट मेक नोट्स राइट नाउ, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? बिकॉज आगे जाके नोट्स नहीं मिलते हैं। क्रैश कोर्सेज में एनरोल करोगे तो इट्स गोना बी वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो। सो प्लीज स्टार्टिंग प्रॉपरली, स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड बाय द एंड ऑफ द सी आई एम गारंटिंग यू विल स्कोर गुड मार्क्स। मेक नोट्स, ओके? आई एम स्क्रोलिंग अप थोड़ा सा ताकि आप जो भी है एक्सप्लेन, जो भी मैंने किया है, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर पाओ, राइट? आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन everything. Do not miss out on anything, and do not go on Google and find notes or find something else, extra information. Do not need extra information, right? You do not need extra information. Whatever you are studying is enough from my videos. You can search something for your other entrance exam or for your knowledge or for your curiosity, but not for CVT PG. I'm sorry if this sounds weird, but you do not have to. Extra पढ़ोगे तो फिर ब्रेन फॉग हो जाएगा, ऐसा लगा कि पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सिलेबस है। बट बहुत ईजी है, आपको बस क्या करना है, आराम से देखना है, आराम से नोट्स बनाना है, चिल रहना बिल्कुल। डू नॉट टेक स्ट्रेस। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।